Hello students, today we will start with our next application of Gauss's theorem, that is the field intensity or electric field intensity due to a charged spherical shell. Suppose we have this charged spherical shell, a spherical shell है S which is hollow from inside, अंदरों hollow है, charged spherical shell है, ते charge ਜਿਹੜਾ भी है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ total charge ਜਿਹੜਾ that is equals to Q. The spherical shell the radius है R and the charge on this shell that is Q and the surface charge density of this shell that is equals to sigma. So sigma that is equals to Q S के बराबर है, sigma that is equals to Q into area. Now we will calculate the electric field at 3 points. हुने इस चार spherical shell करके असी 3 points से electric field लभनी है. पहला जो पॉइंट P that is outside the shell, इस shell तो बाहर है. दूसरा जो पॉइंट P इस shell दे ऊपर है on the surface of the shell. तीसरा जो पॉइंट P shell दे अंदर है inside the shell. So we will calculate the electric field at 3 points. ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ केसेस वास्ते ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈ 3 Gaussian surface consider ਕਰਾਂਗੇ. One Gaussian surface outside the shell, another Gaussian surface over the shell, and the third Gaussian surface that is inside the shell. Now let's start it. Now a thin spherical shell has radius of the R है, the charge on the surface that is Q, surface charge density that is sigma. To calculate the electric field intensity at P, consider a Gaussian surface S1 of radius small r. ਜਿਹੜਾ spherical shell है ਉਹਦਾ radius capital R है, ਜਿਹੜਾ Gaussian surface ਨੂੰ ਅਸੀਂ P point ਤੇ electric field find out करनी है. So ਅਸੀਂ ਉਹ Gaussian surface consider ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ कि P point ਤੋਂ pass करेगा. So P point ਦਾ center ਤੋਂ distance है that is small r. So we consider a Gaussian surface of radius small. Then according to Gauss's theorem, E dot ds, we consider a small area ds. इस एरिया तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है. E dot ds 1 surface area पूरा इंटेग्रल that is the total electric flux. So this is equals to E ds cos 0 degree or it is equals to Q over epsilon. E इंटेग्रल कर दो ds1 Q over epsilon, E into 4 pi r square Q over epsilon. So ਇਹਦੇ ਲਈ electric field E that will be equals to E is equals to Q over 4 pi epsilon naught r square that is outside the shell, or E is directly proportional to 1 over r square. Now when the point P is on the surface of the spherical shell, तो ऐसी small r की जगह की put कर देंगे कैपिटल आर स्क्वायर. लेकिन क्यू कितने बराबर है, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. वो ऐसे सब्सिट्यूट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बराबर निकलती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन. सो दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. तीसरा, व्हेन द पॉइंट पी इज ऑन द गॉसियन सरफेस S2 इनसाइड द शेल, उस वेले R2 विच इज़ स्मॉलर दैन R नालों छोटा होएगा. सो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो के बराबर होएगा क्योंकि चार्ज जिन्ना भी है वो शेल के सरफेस के उपर रीसाइड करेगा, ना कि अंदर. अंदर तो स्पेस है, हवा है, हवा के चार्ज थोड़ी ना एग्जिस्ट करता, इट ओनली एग्जिस्ट ओवर द सरफेस. सो इनसाइड द शेल Q इज इक्वल्स टू जीरो, जिदे करके E कितने बराबर हो गया, जीरो के बराबर. सो अगर असी ग्राफ ड्रॉ करिए E और R दे विच, ਜਦੋਂ R, this is the R, ਜਦੋਂ R अंदर इनसाइड R ਜਦੋਂ छोटा है कैपिटल R तो ਉਹਦੇ रेडियस तो, उस वेले इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर है, E जीरो. ਜਦੋਂ R कैपिटल R के बराबर आया इलैक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन. तो ਜਦੋਂ जो R घटी वधी जाएगा तो उਦੋਂ इलैक्ट्रिक फील्ड घटी जाएगी outside the spherical shell. Now this is a very important article or a mostly
पेपर 'च आ चुका है। Now, next one, that is electric field. Another application, electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge. अगर साढ़े को शीट ऑफ चार्ज होए उहदे ते सारे पॉजिटिव चार्ज है तो असी किसी पर्टिकुलर पॉइंट P ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते वी वांट टू फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इहदे लई की करांगे, फर्स्ट वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया ऑफ दिस शीट ds। ये स्मॉल एरिया करके इस पॉइंट P ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी वो निकालेंगे, फिर इनू इंटैग्रेट कर देंगे तो टोटल करके इलैक्ट्रिक फील्ड साढ़े को आ जाएगी। Now a thin plane infinite sheet, sigma is the surface charge density. To calculate the electric field at P for symmetry, we have to calculate the field on the both side of the sheet perpendicular to the plane of the sheet having same magnitude equidistant from the sheet। एक पॉइंट ते निकालने ਲਈ सानू इक्विलिब्रियम करके दोनों पॉइंट से इधरले पासे P इधरले पासे Q दोनों पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पेगी। Now consider a cylinder of cross sectional area ds around P at a distance r from the sheet। Now असी मान लेने कि एक सिलेंडर जिदा एरिया ds है वो इस पॉइंट P जो निकल रहा है और वही सेम सिलेंडर Q तो भी निकल रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ds और डिस्टेंस फ्रॉम द शीट दैट इज इक्वल्स टू r दे बराबर है। Now at the edges the electric field that is equals to 2E dot ds। edges ते इस पॉइंट ते इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड किदे बराबर होएगी E ds क्योंकि n एरिया वेक्टर दैट इज पैरेलल टू E। लेकिन अगर इसी इन्ना पॉइंट से इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए दैट विल बी 0 क्योंकि E दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर इस जगह ते E दे परपेंडिकुलर होएगा क्योंकि शीट है तो इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस साइड ही आएगी ना कि इस साइड। सो E दैट इज परपेंडिकुलर टू n इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 गॉस जेड़ा फ्लक्स है 0 होएगी, इस जगह भी फ्लक्स 0 होएगी। फ्लक्स सिर्फ इस जगह एग्जिस्ट करेगी तो इस जगह एग्जिस्ट करेगी। इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दे विल बी पासिंग थ्रू द शीट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो एट द एजेस द इलैक्ट्रिक फ्लक्स किधर बराबर आ गई 2E dot ds n कैप दोनों करके विच इज़ इक्वल्स टू 2E ds cos 0 डिग्री और 2E ds के बराबर आ जाएगी। Now on this surface, on the curved surface, electric flux on the curved surface that is equals to E ds which is equals to 0। ये ऑलरेडी कर लिया सी। सो टोटल फ्लक्स किधर बराबर आ गई 2E ds, फ्लक्स किधर बराबर आ गई 2E ds। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम Q ओवर फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 2E ds और सिग्मा Q किधर बराबर है सिग्मा इंटू एरिया ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2E ds और ds कटेगी एरिया ये कटेगी सो इतने आ गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन फॉर अ थिन शीट। इफ द शीट इज़ वेरी थिक जो शीट बहुत मोटी होवे तो वो दो साइडेज असी फ्लक्स कैलकुलेट करांगे इधरले पासे भी तो परले पासे भी। then we have the two surfaces S1 and S2। एक surface S1 है दूसरा surface S2 की। then the electric field at P किसी भी point P ते electric field दो जाने करके होएगी E1 किधे करके तो दूसरी करके E2 दूसरी करके। so sigma over 2 epsilon is equals to sigma over epsilon इस P point पे electric field आ जाएगी। Now the electric field, next one, the electric field due to two thin infinite parallel sheets of charges। मान लो साढ़े को दो sheets ने एक दी surface charge density है sigma 1 दूसरे दी surface charge density है sigma 2। असी तीन पॉइंट ते तीन रीजन्स ते तीन पॉइंट से इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये क्या पॉइंट थे एक दोनों शीट्स के विचकार ते एक रीजन 3 इस जगह ते। ना सिग्मा 1 ये करके जी इलैक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के इस डायरेक्शन में जा रही है। सिग्मा 2 करके इलैक्ट्रिक फील्ड इस रीजन इस जा रही है।
सिग्मा 1 करके रीजन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਮਾ 2 ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂ ਹੈ। ਰੀਜਨ 3 ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਫਸਟ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E1 ਮਾਈਨਸ E1 ਮਾਈਨਸ E2, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਨਸ E1 ਮਾਈਨਸ E2। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, कहते करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। सो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इन रीजन 2 E2 दोनों अपोजिट डायरैक्शन च एक पॉजिटिव आ जाएगी, जी असी इधर नूं लवांगे पॉजिटिव आएगी, जी इधर नूं लवांगे नैगेटिव आएगी। सो इट इज़ E1 माइनस E2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो रीजन 3 विच दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही राइट साइड में जा रहे हैं। सो इट इज़ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा तो सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा, मतलब एक शीट पॉजिटिव तो दूसरी शीट नैगेटिव। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन वो भी जीरो हो जाएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन वो भी जीरो हो जाएगी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। इट मीन्स अगर एक शीट पॉजिटिव हो जाए तो एक शीट नैगेटिव हो जाए तो दोनों पासे इधर इधर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगी, जिन्नी भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी दैट विल बी ओनली इनसाइड द टू शीट्स दैट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। इलैक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन्हां दो शीट्स के विचकार ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो वो पॉजिटिव शीट तो नैगेटिव शीट वाल जाएगी। नाउ दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर और एक ही बन जाएगा एक कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का काम की है, अपने अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड नूं स्टोर करके रखना। सो कैपेसिटर असीं करांगे नैक्सट टॉपिक। नाउ गॉसिस थ्योरम नाल रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज ने, फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू E डॉट ds एंड दिस इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन के बराबर है। ड्यू टू लाइन चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन r के बराबर है। ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑन द आउटसाइड द शेल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ऑन द surface of the shell sigma over epsilon, inside the shell that is 0। due to infinite sheet or thin sheet E is equals to sigma over 2 epsilon, due to thick sheet मोटी sheet करके E के बराबर है sigma over epsilon। so remember these points, I will send you the numericals related to Gauss's theorem।